Hello children, today we will start English first of class 4 lesson 3. Lesson 3 The best verse Sarvashrestha Kavita. Once there was a small kingdom on the bank of the river Shipra. एक बार एक नदी शिप्रा के किनारे एक छोटा सा राज्य था. The king was fond of new verses. राजा नई नई कविताओं के बहुत चहेते थे या नई नई कविताओं को बहुत पसंद करते थे. He used to give prizes on almost all verses. वे करीब करीब सभी कविताओं के लिए उपहार दिया करते थे. Once 4 poor villagers of his kingdom started to the capital city in the hope of some money. एक बार उनके राज्य के गांव के 4 गरीब पैसे प्राप्त करने की आशा से राजधानी के लिए निकल पड़े. They were not learned ones. वे पढ़े लिखे नहीं थे. But they dared. परंतु वे साहसी थे. They thought each of them will make one line of the verse. उन्होंने सोचा कि हर एक कविता की एक एक लाइन लिखेगा. And they all will present a verse of 4 lines before the king. और वे कविता की 4 लाइन राजा के सामने प्रस्तुत करेंगे. On the way they were worried and thinking about the lines of the verse. पूरे रास्ते भर वे चिंतित थे और कविता की लाइन के बारे में, कविता की पंक्तियों के बारे में सोच रहे थे. One of them saw a field rat scraping the earth. उनमें से एक ने खेत के चूहे को देखा. वह पृथ्वी को खोद रहा था. He exclaimed, वो चिल्लाया, I have composed my line of the verse. मैंने अपने कविता की एक लाइन बना ली है. See, he throws up the earth scrap. देखो, वह पृथ्वी को खोद खोद कर फेंक रहा है. As they passed by a pond, they saw some frogs jumping into a pond. जैसे ही वे एक तालाब के पास से गुजरे, उन्होंने देखा कुछ मेढक उस तालाब में कूद रहे हैं. One of the others said at once. उनमें से एक चिल्लाया, My line is, मेरी पंक्तियां हैं. Plumpty plump down he said. अचानक और असावधानी से कुछ रख कर बैठ गया. A little later they saw a pig wallowing in the mud. थोड़ी देर बाद
उन्होंने देखा एक सूअर मिट्टी में, कीचड़ में लोट-पोट कर रहा था। The third villager said, तीसरे गांव वाले ने कहा, My line will be, मेरी पंक्तियां होंगी, rub away, now some more water, rub away। मेरी पंक्तियां होंगी, रगड़ो, अब कुछ और पानी, रगड़ो। I know, my boy, what you are going to do। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुम क्या करने वाले हो। The fourth villager, when they came in sight of the capital city, exclaimed, चौथा गांव वाला जब उन्हें राजधानी का दर्शन हुआ तो वह चिल्ला पड़ा। The fourth line of the verse is, कविता की चौथी लाइन है, Highways and byways, what a big city, the valley is doing his rounds। Highways and byways, राजमार्ग में, उपमार्ग में, कितना बड़ा शहर है। अमीन अपना काम कर रहा है। Then they found a man to write down these 4 lines on a sheet of paper। तब उन्होंने एक व्यक्ति को खोजा जो कि उनकी ये 4 पंक्तियों को कागज के टुकड़े पर लिख सके। And presented it to the king, और उसको उन्होंने राजा को प्रस्तुत कर दिया। The king could not understand the meaning of the verse। राजा कविता की अर्थ को नहीं समझ सका। The villagers too could not explain the lines। गांव वाले भी उन पंक्तियों को नहीं समझा पाए। The king took pity on them and gave some money to each। राजा को उनके ऊपर दया आ गई और उन्होंने उन्हें कुछ पैसे दे दिए। They departed to their village। वे अपनी गांव की तरफ चल पड़े। Now the king's chief minister wanted the wealth of the kingdom for himself। अब राजा का मुख्यमंत्री राज्य की सारी दौलत अपने लिए चाहता था। He sent his men to break into the king's palace and steal all his money and jewels। उसने अपने कुछ आदमियों को राजा के महल में खोद करके दरार बनाकर घुसने के लिए भेजा, जिससे कि वे राजा का धन और जवाहरात चुरा सकें। They began to cut a hole through the mud wall of the king's room। वे राजा के कमरे की मिट्टी की दीवार को काट कर छेद बनाने लगे। But the king was awake, puzzling over the paper the villagers had given him। परंतु राजा गांव वालों के दिए गए कागज के पेचीदा कविता को सोचते हुए जाग रहा था। He kept reading it over and over again। वह उसे बार बार पढ़ रहा था। Just as the minister's man had cut halfway through the wall, they heard the king saying। जैसे ही मंत्री के आदमियों ने दीवार के आधे हिस्से तक काटा, उन्होंने राजा की बात को सुना। See, he throws up the earth, scrap। देखो, वह पृथ्वी को खोद कर फेंक रहा है। At once they concluded that they had been hurt and they cried
storm. अचानक से उन्होंने यह नतीजा निकाला कि उन्हें सुन लिया गया है और वे नीचे दुबक कर बैठ गए। The king went on reading. राजा आगे पढ़ता गया। Plumpty plump down he sat. अचानक और असावधानी से सब कुछ रख कर बैठ गए वो। This made them think they had been seen and they ran off. इससे उन्होंने सोचा कि उन्हें देख लिया गया है और वे वहां से भाग गए। The ministerman reported him the incident. The minister's men reported him the incident. मंत्रियों के आदमियों ने इस घटना को मंत्री को बताया। Then the minister bribed the king's barber to cut the king's throat while shaving him. तब मंत्री ने राजा के नाई को दाढ़ी बनाते समय राजा का गला काटने के लिए घूस दिया। He also bribed the palace valet to control the situation after the king's murder. उसने महल के अमीन को भी घूस दिया कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर राजा की हत्या के बाद जो स्थिति पैदा होगी उसको वह नियंत्रित कर सके। When the barber went to save the king, and while he was rubbing water over the king's face, जब नाई राजा की दाढ़ी बनाने के लिए गया और जब वह पानी रगड़ रहा था राजा के चेहरे पे, the king began to read the verse. राजा ने उस कविता को पढ़ना शुरू किया, मरमरिंग बड़बड़ाते हुए, rub away, now some more water, rub away, रगड़ो, अब और पानी, रगड़ो, I know my boy what you are going to do. मैं जानता हूँ मेरे बच्चे तुम क्या करने वाले हो। The barber heard the line and thought that the king referred to his rubbing the water over his face for shaving. नाई ने इन पंक्तियों को सुना और सोचा कि राजा उसके पानी के रगड़ने को जो चेहरे पर दाढ़ी बनाने के लिए उनके चेहरे पर जो पानी रगड़ रहा है उसको वो इंगित कर रहे हैं। He concluded that someone had revealed the plot. उसने नतीजा निकाला कि किसी ने उसके षड्यंत्र का खुलासा कर दिया है। So he threw himself at the king's feet and confessed everything, swearing that the minister and not he was plotting against the king. और उसने अपने आप को राजा के चरणों में गिरा दिया और सब कुछ कबूल कर लिया। उसने सौगंध खाई कि मंत्री ने ये सारा षड्यंत्र राजा के खिलाफ रचा है, न कि उसने रचा है। The king at once sent for the bailiff. राजा ने तुरंत अमीन को बुलाया। When the bailiff came in, जब अमीन अंदर आया, he found the king saying, उसने पाया कि राजा कह रहे थे, highways and byways, what a big city. राष्ट्रमार्ग और उपमार्ग कितना बड़ा शहर है। The bailiff is doing his rounds. अमीन अपना काम कर रहा है। The bailiff at once concluded that the king was referring to him. अमीन ने यह नतीजा निकाला कि राजा उसे ही इंगित कर रहे हैं। He
गोइंग ऑन। वह अपने घुटनों पे बैठ गया और उसने कबूल किया कि आगे क्या होने वाला है। द किंग ऑर्डर्ड हिम टू टेक द मिनिस्टर एंड द बार्बर टू द प्रिजन। राजा ने आदेश दिया कि मंत्री को और नाई को जेल में डाल दो। लेटर ही ऑर्डर्ड हिज सीक्रेट पुलिस टू अरेस्ट द बैनिक। बाद में उसने अपनी खुफिया पुलिस को आदेश दिया कि वह अमीर को भी गिरफ्तार कर ले। द किंग वॉज मच इम्प्रेस्ड बाय द वर्स। राजा उस कविता से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। इट सेव्ड हिज लाइफ एंड किंगडम। इस कविता ने उनकी जान और उनके राज्य को बचाया। He sent messengers to look for the villagers to award them. उन्होंने दूतों को भेजा कि जाओ उन गांव वालों को खोज के लाओ जिससे कि उन्हें इनाम दिया जा सके। But they thought that the king will punish them. परंतु उन्होंने सोचा कि राजा उन्हें सजा देगा। They ran away from the village and could not be found. वे गांव से भाग गए और फिर कभी नहीं मिले। थैंक यू।